increasingly now, back pain is more like a headache. Why do you think it's happening? More sitting, less mobility, less physical activity. With the new times, we are more on screen. There is a direct correlation between stress and back pain. आज हम actually देख रहे हैं early degenerative changes in your spine. Yes. What is the spine degeneration age in today's time with the modern lifestyle? जो चेंजेस हमें अर्ली 45 और 50 में दिखते थे, एग्जैक्टली सेम पिक्चर आज हमको हमारे लेट 20s में दिख रहा है. वी आर एक्चुअली सीइंग सो मच ऑफ सीरियस हेल्थ इश्यूज विद द स्पाइन. यंग पीपल बिलो 30 आर आल्सो गोइंग फॉर सर्जरी. So lifting weights improve back strength. Does that really help? I think it is more glorified or emphasized. और ये awareness इतनी बढ़ रही है कि even women in their 45s and 50s, they want to go to the gym. So does a strong spine also need a strong core? Today, we have with us Dr. Kawaljeet Gandhi, a musculoskeletal physiotherapist and clinical nutritionist with 16 years of experience. He holds a master's degree in physiotherapy, specializing in musculoskeletal conditions. While working as an intensive care physiotherapist at Sefi Hospital, he also completed a fellowship in orthopedic rehabilitation from Apollo Hospital. He has worked with the Cricket Club of India, helping athletes recover stronger, faster, and perform better. He is a certified manual therapist with multiple certifications in orthopedic and musculoskeletal rehabilitation. As a clinical nutritionist, he brings a rare blend of movement science, biomechanics, physical rehabilitation, and food-based healing to his patients. With a mission to save people from spine surgeries, he has successfully treated thousands of young and older patients over the last 16 years. Today, he helps us understand the body in a way that is simple, practical, and rooted in real clinical experience. One very integral issue that we want to put light on is back pain. जब बचपन में हम बड़े हो रहे थे ना, सिर्फ सर का दर्द सुनते थे. पापा के सर में दर्द हो गया, मम्मी के सर में दर्द हो गया. प्राइमरीली वो सर का दर्द सिर्फ इसलिए होता था क्योंकि हम बच्चे बहुत शोर मचाते थे. But increasingly now it has become like a back pain is more like a headache. You know? Why do you think it's happening? With time, things are different. हम सेडेंटरी होते जा रहे हैं. Yes. हम स्मार्ट तो हो रहे हैं, पर हम टेक्नोलॉजी में स्मार्ट हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन में स्मार्ट हो रहे हैं, मगर प्रैक्टिकली एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं. मोर सिटिंग, लेस मोबिलिटी, लेस फिजिकल एक्टिविटी, दिस इज द मेन रीजन व्हाई. When we say back pain, जी, what exactly happens inside our body, inside to our spine when we are, saying that yes, I have a back pain? बैक पेन को समझने के लिए इन सिंपल वर्ड्स अंडरस्टैंड स्पाइन. Okay. स्पाइन आपके बॉडी का सबसे मेन पार्ट है. जी. योर हेड, इट स्टार्ट्स हेड के नीचे नेक, नेक टू योर टेल बोन इज रेफर्ड एज स्पाइन. स्पाइन कुछ बोन से बना हुआ है जिनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. नेक के पार्ट को हम बोलते हैं सर्वाइकल, मिड बैक के पार्ट को बोलते हैं हम डॉर्सल, और लोअर बैक के पार्ट को हम बोलते हैं लंबर. ठीक है ना. ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. 33 बोन्स टुगेदर एज अ चेन इज कॉल्ड स्पाइन. बैक हम रेफर करते हैं ज़्यादातर टाइम लोअर बैक को. जी. जिस हिस्से में हम बेल्ट पहन रहे हैं उससे ऊपर का हिस्सा जहाँ तक हमारा हाथ कंफर्टेबली जा रहा है. मिड बैक को भी हम बैक बोलते हैं और शोल्डर के पीछे के हिस्से को भी हम बैक बोलते हैं. हम सिर्फ रेफर करते हैं अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक. लोअर बैक की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हम बैठते ज़्यादा है, हेड टू लो बैक वेट ज़्यादा आता है जी. और मूवमेंट भी लोअर बैक पे ज़्यादा होती है. इसीलिए बैक पेन ज़्यादा लोअर बैक में होता है. स्पाइन सिर्फ सेंटर में जो बोन है वो नहीं है. स्पाइन के साथ में मसल्स, मसल्स के साथ में नर्वस सिस्टम, उसके साथ में उसकी डिस्क, ये सब कुछ रीज़न है लो बैक पेन का. When people have lower back pain or this kind of pain, जी, immediately sometimes they are asked to do X-rays and MRIs, and usually nothing comes. राइट. So what exactly is causing that pain? Why are we feeling that pain in the lower back? हम 4 मेजर पार्ट में डिवाइड कर देते हैं लो बैक पेन को. आपकी जो स्पाइन है, जो बोन्स है और उसके बीच में जो डिस्क है, 2 बोन्स और दोनों के बीच में गद्दी है, उसको हम एक सिंगल स्पाइनल यूनिट बोलते हैं. वो एक पोर्शन हो गया. सेकंड पोर्शन हो गया आपकी स्पाइन में जो गद्दी है वहां से नर्व्स निकलती है और आपके बॉडी के सारे पार्ट्स को सप्लाई कर रही है. वो सेकंड पार्ट हो गया. थर्ड पार्ट हो गया वो मसल सिस्टम. आपकी स्पाइन अकेले तो मूव नहीं कर रही है, वो तो बोन है और गद, पर उसके आगे पीछे लेफ्ट राइट बहुत सारे मसल्स अटैच्ड है.
जिसकी कोई बात नहीं करता है। जी। हमें जब भी लगता है पेन है, मतलब डॉक्टर मेरा स्पाइन का एक्सरे कर लिया आपने, उसमें या तो नॉर्मल है या तो खराब है, पर बीच का पिक्चर कुछ नहीं है। तो नॉर्मली कैटेगराइज कैसे करें? एक एक्सरे में हम कुछ चीज़ें देख सकते हैं, बोन की हेल्थ, बोन के अलाइनमेंट, बोन में कोई प्रॉब्लम हुई है वो, ज़्यादातर केसेस में वो नॉर्मल ही आएगा, क्योंकि बैक स्पाज्म होना, मस्कुलर पेन्स होना, वो कभी आपको एक्सरे में नहीं दिखता है। तो जो कन्फ्यूजन है कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ऑर्थोपेडिक ने या फिर फैमिली डॉक्टर ने, एक एक्सरे कराया और एक्सरे की रिपोर्ट दिखाती है कि नॉर्मल है, पर मुझे बहुत समय से बैक पेन चल रहा है और मेरा पेन बेटर नहीं हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि आपका पेन सिर्फ बोन से आ रहा हो, एक्चुअली मसल्स से इन्वॉल्व होता है। Doctor, what is this disc bulge or herniation? What exactly these terms kind of talk about? एक स्पाइनल सेगमेंट में दो हड्डी के बीच में एक छोटी सी डिस्क है, जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। आपने पूछा डिस्क बल्ज। डिस्क बल्ज जब उस डिस्क में स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग क्यों होती है? जब आप कांस्टेंट एक पोजीशन में बैठते हो और आपके मसल्स वर्किंग नहीं है, तो आपकी बॉडी का सारा वेट स्पाइन के थ्रू जा रहा है, क्योंकि मसल्स काम नहीं कर रहे। तो कांस्टेंट प्रेशर आते आते आपकी गद्दी में जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, और हमारी डिस्क जिसको हम गद्दी बोल रहे हैं, उसको न्यूट्रिशन मूवमेंट और पंपिंग से मिलता है। So when you move, they seek The blood nutrition. flows there. Correct. When you don't move, they are just compressed. तो naturally वहाँ पे एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, जिसकी वजह से वो बल्ज हो रहा है। वो जो सॉफ्ट पाउच का प्रेशर है गद्दी का, वो हमें डिस्क बल्ज दिख रहा है। डिस्क हर्निएशन डिस्क बल्ज से अलग होता है। जब इस गद्दी में सिर्फ प्रेशर बना है और वो स्वेल्ड लग रही है, ऐसा लग रहा है वो बल्ज हो गई है, बड़ी हो गई है प्रेशर से, तो ये हो गया डिस्क बल्ज। हर्निएशन होता है जब उस डिस्क में एक्चुअली एक पार्ट ब्रेक हो जाए। हमारे डिस्क के सेंटर पोर्शन में एक जेल है और बाहर के पोर्शन में बहुत सारे रिंग्स की तरह फाइबर है। कई बार कांस्टेंट प्रेशर, इंजरी, सडन मूवमेंट, इन चीज़ों की वजह से वो डिस्क में इंजरी हो जाती है। तो सेंटर का जो जेल पोर्शन है वो थोड़ा सा एस्केप करके अपनी गद्दी से बाहर निकल के नर्व्स जो ट्रैवल करते हैं उनके रास्ते में उनको कंप्रेस कर बैठता है। तो this is disc herniation. A portion of the disc which is supposed to be in the central locality has just broken and moved and gone into the passage. आप अपने घर से निकल के अपने पड़ोसी का दरवाजा इंक्रोच करके बैठ गए। Can that be reversed? It can be reversed sometime. Most of the time it can be managed very well and prevention can be done. अगर आपने इसको प्रिवेंट नहीं करा, धीरे धीरे ये पूरी नर्व को कंप्रेस करेगा या आपके स्पाइनल कॉर्ड को भी कंप्रेस कर सकता है, एंड थिंग्स विल गो वेरी वर्स। टिंगलिंग, नमनेस, लैक ऑफ स्ट्रेंथ, एंड टेक्निकली द लास्ट स्टेज, नो सेंसेशन, नो कंट्रोल, पूरे पैर पैरालाइज्ड। दिस इज स्टेप बाय स्टेप। और आज की तारीख में हम बहुत ही कॉमनली और बहुत ही कैजुअली बोलते हैं, मेरा हाथ सो गया यार, मुझे यहाँ नमनेस रहती है हमेशा, मुझे साइटिक पेन रहता है, मुझे हमेशा बैक पेन रहता है, मैं 30 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं सकता हूँ, और ये तो मुझे बहुत सालों से, और हम इसको लाइटली ले रहे हैं। इट कुड बी जस्ट स्टेज 1, अ लिटिल नर्व पिंच, शायद थोड़ी बल्ज की वजह से नर्व को टच कर रहा हो और आपको सिग्नल दे रहा हो, यू नो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। और इट कुड बी डिस्क हर्निएशन जहाँ थोड़ी सी इंजरी और ज़्यादा कंप्रेशन हो। एट एनी स्टेज वी हैव डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंजरी। स्टेजेस के हिसाब से एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, वेट मैनेजमेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम you can save this, even avoid surgery. But this is So you don't have to ever live with back pain, and this is not a permanent problem. This is a very simple resolvable problem, but you need to seek proper advice. Give yourself a little time and efforts. That's it. people who are going now, who are in a 9 to 5 corporate job. Ji. They, whatever said and done, they have no way to avoid those 8 hours of laptop work. Correct. They have to, because Right. that's how everything is happening. But is it given then, if they have to work in a corporate job, they should end up in the lower back pain? No, absolutely not. Yeah. As humans, we were always working. Yeah. We were always working, and we were working more than this. But the difference is now we are being less physically active, straining ourselves more, taking more emotional burden and stress than physical stress. हम एक्चुअली कंफ्यूज हो गए हैं। हमें लगता है जब हम मसल को पंप करते हैं फिजिकली तो वो ग्रो करता है जी। मगर जब हम आपको बोलते हैं कि आप एक छोटा सा एक्टिविटी करके आओ, कुछ शॉपिंग करनी है, वॉकिंग जाना है, जाके थोड़ा सा कैब लेनी है, वेजिटेबल लेना है, ग्रोसरी लेनी है,
तो हमें वो रिलेट नहीं होता है, तब हम एक्सक्यूज देते हैं, हम वी आर एग्जॉस्टेड, मेंटली एग्जॉस्टेड मे बी। फिजिकली तो यू आर सिटिंग इन द ऑफिस, एसी ऑन था, हम चेयर पे बैठे थे, शायद मूव भी नहीं कर रहे थे, तो दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। कोई भी चीज़ अंडर वर्किंग हो तो भी सही नहीं है, ओवर वर्किंग हो तो भी सही नहीं है। आज की जनरेशन में हम देख रहे हैं अंडर वर्किंग, मोर ऑफ सेडेंट्री, लेस वर्किंग, बट देर आर प्रैक्टिकल सिनेरियोज जहाँ अलग अलग प्रोफेशन में फिजिकल हेल्थ खराब होती है, बैक पेन आता है, पर वहाँ सोर्सेज और रीज़न अलग अलग हैं। एक वर्कर और एक लेबरर अपने ऑफिस सेटिंग में, इंडस्ट्रियल सेटिंग में बैक पेन के रीजंस दूसरे हो सकते हैं, मगर फॉर कॉमन मैन और फॉर अ कॉमन पर्सन इट इज़ लाइक मोर ऑफ सिटिंग। सिटिंग में भी हम घर पे भी बैठ रहे हैं, हम हमारी गाड़ी में भी जब ऑफिस जा रहे हैं तो भी बैठ रहे हैं, ऑफिस में भी हम चेयर पे बैठ रहे हैं, हम रिटर्न आते हैं थक के घर पे भी हम सोफे पे बैठ जाते हैं। इसी सोफे पे आप एंटरटेनमेंट भी देख रहे हो और इस पे आप काम भी कर रहे हो, तो आप इतने बिजी हो जाते हो, इनग्रॉस हो रहे हो, और धीरे धीरे यही रीज़न हो रहा है कि आप इतने बिजी हो गए, आपने पोस्चर पे ध्यान नहीं दिया, जो दिन भर में थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए थी वो भी चली गई, हर जगह बैठना ही हो रहा है, मसल्स टाइट होते जा रहे हैं, कॉन्स्टेंटली वही मसल्स लोड हो रहे हैं क्योंकि जगह भी फिक्स्ड है, पोस्चर्स भी फिक्स्ड है, आप वेराइटी नहीं दे रहे हो, वेरिएशंस नहीं दे रहे हो। सेम प्लेस इन माय हाउस आई एम सिटिंग ऑन द सेम चेयर, इन द ऑफिस आई एम सिटिंग ऑन द सेम चेयर, वेयर इज द मूवमेंट? देयर इज नो मूवमेंट। अब मूवमेंट चाहते हैं कि हम मूवमेंट करें, एंड आई फील लॉट ऑफ पीपल, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस वी नो कि एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, मूव करना ज़रूरी है। तो अब हम क्या करें, मंडे टू फ्राइडे हम डेली लाइफस्टाइल में तो बहुत बिजी हो गए, वर्क इज़ द प्रायोरिटी। अब सैटरडे संडे जो छुट्टी मिलती है ना, तो हम कुछ एक्सेस कर रहे हैं। अब ऑफिस को तो बिल्कुल नहीं छूना है, पर मुझे मॉल जाना है, मुझे सुबह रनिंग के लिए जाना है, मुझे कोई स्पोर्ट खेलना है, और आप जस्ट अपोजिट कर रहे हो। इट्स लाइक वीकेंड वॉरियर का, वीकेंड वॉरियर, एग्जैक्टली। 5 दिन की नो फिजिकल एक्टिविटी, और वो 5 दिन का बैलेंस आप लास्ट के 2 दिन में निकाल रहे हो, जो आपको ज़्यादा रिस्क है। दिस इज मोर रिस्की। नो मूवमेंट टू सीरियस मूवमेंट टू ओवर मूवमेंट, दिस इज नॉट गुड। इट हैज टू गो स्ट्रक्चरली, स्टेप बाय स्टेप, गिविंग अ शॉक टू योर मसल्स। एग्जैक्टली। आपने वार्म अप नहीं किया, आपने कोई फिजिकल लोडिंग नहीं की। कल तक मुझे याद नहीं कि मैंने कब फुटबॉल खेला था, मगर आज दोस्तों ने बोला ऑफिस से लेट्स गो एंड प्ले, एंड वी सेड आई एम 30, आई एम 25, आई एम 35, मुझे कोई बैक पेन नहीं है, खेल लेते हैं, एंड देन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। Yes, because a lot of people actually collapse, You're right. while doing that, and they have injuries. Like I recently had someone who, during his gymming session only, some abdomen में कुछ तो टक 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 आवाज हुई, and then उसके बाद he landed himself in therapy. आई वुड से प्राइमली द रीजन इज नॉट कि अगर आप 5 दिन फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो और 6th डे कुछ फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर लेते हो, शायद हमें पता नहीं कि हमारे शरीर में क्या चल रहा है, और हमारा एक अजम्पशन है कि हम एक साल में हेल्थ चेकअप कर लेते हैं ना, तो होल बॉडी चेकअप में सब स्कैन हो गया, आपके ब्लड रिपोर्ट भी देख ली हमने, और हमने आपका एक एक्सरे भी कर लिया, एंड एवरीथिंग इज़ गुड। जैसे हमें पता है कि रेगुलर डेंटिस्ट चेकअप होना चाहिए, रेगुलर फिजिकल असेसमेंट, मसल कंडीशनिंग, वो भी तो देखना चाहिए। क्या आपके कुछ मसल्स वीक हैं, स्ट्रॉन्ग है, आपकी स्पाइन कैसी है, आपकी जॉइंट्स कैसे हैं, हाउ आर यू कंडीशनिंग देम, हाउ आर यू प्रिपेयरिंग देम, हाउ आर यू मैनेजिंग देम, इसकी कोई बात नहीं करते, तो पीपल डोंट नो। एंड एक्चुअली यंग लोगों में हेल्थ इश्यूज ऑर्गन से तो आएगा नहीं, हार्ट से नहीं, लिवर से नहीं आ रहा है, किडनी से नहीं आ रहा है, ज़्यादातर शोल्डर में पेन है, नी में पेन है, बैक में पेन है, बिकॉज स्पाइन इटसेल्फ इज सो मच एंड वी यूज देम सो मच। अगर खाना खाना हो तो स्पाइन यूज हो रहा है, कपड़े पहनने हो तो यूज हो रहा है, मगर चेक करने कहाँ जाए पता नहीं है। वाई नॉट अ फिजियोथेरेपिस्ट? आप उनके पास जाएं, दे विल असेस, they will prepare a chart, they will check your muscle function, आपकी muscle tightness, आपकी muscle weakness, आपकी conditioning response, आपकी stamina, बहुत सारी चीज़ों का एक structural standard assessment है, जिससे आपको पता चलेगा where do you stand, how strong you are you more stiff, are you more strong, are you more flexible? But doctor, this is a very interesting point that you have put across. Muscle health somewhere, you know, bone health we have heard a lot, organ health we have heard a lot, skin health, dental health, eye health, मतलब ये सब है, but muscle health is something that usually is not spoken about. So, and plus because like we rightly discussed in the beginning also कि how it doesn't get detected in x-rays and all of that. And most, I don't know if it is correct to say that कि कोई भी पेन हो रहा है बॉडी में, सबसे पहले इंडिकेशन ये है मसल का ही
प्रॉब्लम है वो। रीजन हो सकता है। Yeah. क्योंकि अगर आपकी स्पाइन में कोई प्रॉब्लम होगी तो भी स्पाइन कैसे बोलेगी? हाउ वुड यू नो? Yeah. इट्स नॉट दैट एवरी टाइम यू गेट अ बैक पेन आप सीधा एमआरआई करोगे और स्पाइन को असेस करोगे डिटेल में। पर स्पाइन को भी प्रेजेंट करने के लिए आपके बॉडी में ऑलमोस्ट वी हैव मोर देन 660 मसल्स। Yes, I was. पर कोई बात नहीं करता है, शायद पता नहीं है या डॉक्टर्स ने कभी अवेयर नहीं किया, शायद थोड़ी लाइटली लिया जाता है कि ठीक है बैक पेन इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड वी टेक इट वेरी लाइटली। नो, यू हैव 660 मसल्स, हमें सिर्फ 4-5 मसल ही पता है। जो बाइसेप्स दिखता है वो पता है, जो चेस्ट दिखता है वो पता है, जब ट्रैप्स में पेन होता है तो पता है, या पैर दर्द होते हैं तो काफ और क्वाड्स पता है। बाकी के मसल तो हमें लगता है कि हम एक मूवमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ ये मसल काम कर रहे हैं, नहीं, देयर आर लॉट ऑफ मसल ग्रुप्स। कुछ बैलेंस के लिए काम कर रहे हैं, कुछ स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, कुछ कंट्रोल के लिए कर रहे हैं और कुछ परफेक्शन और प्रिसीजन के लिए कर रहे हैं। तभी तो आप एक टास्क को इतनी परफेक्टली कर लेते हो। In fact, doctor, this is very interesting because in yoga also, in asana routine, if you are practicing an asana in a certain direction, you have to follow it with an asana which is practiced in a reverse direction, so that your spine is moving equally in all directions. You need that balance. Yeah, you need that balance. And as humans, I feel almost all our activities are forward based. Yes, that's खाना true. खाना है Hardly we तो do आगे। balance. Yeah. हम पीछे की साइड कुछ नहीं कर रहे हैं एंड विद द न्यू टाइम्स वी आर मोर ऑन स्क्रीन विच इज़ नॉट बैड, इट इज़ जस्ट दैट वी हैव टू यूज़ इट स्मार्टली। कि अगर हम सुबह से रात तक आगे झुक रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे भी तो कुछ करना है। तो रिवर्स बेंडिंग, आर्चिंग, एक्सरसाइजिंग, स्ट्रेचिंग वो भी तो ज़रूरी है। दैट्स बीन that's it. What I want to understand that like lower back pain is not just for people who are sitting in cubicle and working on their laptop. Even our mothers, you know, not in the young age but in the later age, these women, they don't have anything to do with laptops, but they are also suffering from lower back pain. Correct. Why do you think it's happening with them? मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपके किचन का प्लेटफॉर्म का हाइट या वर्किंग स्पेस बहुत अनईजी है। वॉशिंग यूटेंसिल्स के लिए सिंक आप बहुत झुक के कॉन्स्टेंटली काम करते हो। So you have spoken about how our lifestyle is a very sedentary lifestyle, which is also leading to lower back pain because you put a lot of pressure on your muscles and eventually they will get painful. When we talk about muscle conditioning, muscle health, जी, what are the things that you would advise today's young generation specifically that they should be doing almost on a daily basis so that in their old age, when they you know get into that 50 above or 60 above age, they do not have that kind of a back pain or a lower back pain? टेक्निकली हमें सिर्फ खुद की कुछ एक्सरसाइजेस जो स्ट्रेचेस हो सकती हैं, पुशअप्स हो सकते हैं, सिंपल वॉल सपोर्टेड स्क्वाट्स हो सकते हैं। आपकी बिल्डिंग में सीढ़ियाँ हैं, क्यों नहीं एक फ्लोर उतर के लिफ्ट ले लो, क्यों नहीं एक फ्लोर उतर के आ जाओ। आज हम बैठे बैठे ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर कर रहे हैं। इट्स जस्ट द शॉप डाउन योर बिल्डिंग, व्हाई डोंट यू गो टेक अ वॉक, कम बैक अगेन। तो बीइंग मोर फिजिकली एक्टिव इन अ डाइवर्स रोल, छोटी छोटी चीज़ों के लिए अलग अलग तरह से मूवमेंट करना, वो मसल्स को ज़्यादा इंगेज करता है और वो मसल को ज़्यादा बेटर कंडीशन करता है। पर हमेशा स्ट्रेंथनिंग, पंपिंग, एक्टिविटी यही ज़रूरी नहीं है। आई थिंक इट इज़ मोर ग्लोरीफाइड और एम्फेसाइज्ड कि आपको स्ट्रेंथनिंग करनी है, मसल स्ट्रेंथ चाहिए, बोन मास के लिए चाहिए। और ये अवेयरनेस इतनी बढ़ रही है कि इवन विमेन इन देयर 45 एंड 50 दे वांट टू गो टू द जिम एंड बिल्ड अप मसल। पर हाउ अबाउट लेट्स फर्स्ट स्ट्रेच द मसल, क्योंकि जो मसल कभी यूज नहीं हो रहा है अच्छे से और स्पेशली जिम के लिए है ना, एक्टिविटी स्पेसिफिक भी तो होना चाहिए। तो आप पहले उसको स्ट्रेच करें, उसको एक्टिवेट करें, उसको बेसिक कंडीशनिंग एक्सरसाइज सिखाएं और उसके बाद में आप वेट प्रॉपरली उठाएं। बिकॉज अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो कोई भी नई चीज़ आपको इंजरी पहले देगी, सेटबैक्स पहले देगी, इफेक्ट बाद में देगी। इनफैक्ट आसना प्रैक्टिस का जब भी एक रूटीन बनाया जाता है तो उसके अंदर ये 3 चीज़ें बहुत ध्यान रखी जाती है कि फर्स्ट फ्यू मिनट्स हैव टू बी वार्म अप, देन इट हैज़ टू बी लाइक होल्डिंग ऑफ आसना, ब्रीदिंग एंड एवरीथिंग, एंड देन फाइनली स्ट्रेचिंग एंड देन शवासन which is like corpse pose where you have to completely cool down your body. It's well said. Even yoga is lot of body opening, breath work, mobility and control. कितना सिंपल है। और उसके लिए हमें बहुत स्पेस तो नहीं चाहिए, एक विल चाहिए और एक स्टेप चाहिए। समटाइम्स कुछ दीवारें चाहिए और एक that's it. That's it. Yeah. Why not? To start with, that would be the best thing. So, doctor, when we talk about these lower back pain, जी,
once you have them, once you've developed some kind of a pain, will it stay lifelong no matter what you do, or is there a way to completely make it go away? I would put it as nothing in life is permanent. Yeah. If you take care of anything, it will be helpful. It's very easy. लो बैक पेन अलग अलग कारणों से हो रहा है ना, मसल भी इन्वॉल्व है, स्पाइन भी इन्वॉल्व है, नर्व भी इन्वॉल्व है. इन सारी चीज़ों को देखने के लिए कितना इजी होता है कि पहले हम हमारे फंक्शन को देखें. हाउ आर वी फंक्शनिंग, हाउ इज़ योर स्पाइन फंक्शनिंग, किन पॉस्चर्स में ज़्यादा काम हो रहा है, कौन से मसल ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं. वंस यू स्टार्ट डूइंग ऑल दैट, इट बिकम्स सो मच ईजी टू अंडरस्टैंड वेयर दी सोर्स ऑफ पेन इज कमिंग फ्रॉम. क्या वो सिर्फ ओवरवर्किंग मसल की वजह से मुझे बैक पेन हो रहा है, या क्या मैं ओवरवर्किंग मसल की वजह से अपनी स्पाइन हेल्थ को इतना ख़राब कर रहा हूँ कि कुछ ही सालों में मैं बैठे बैठे सेडेंट्री लाइफस्टाइल में अपने गर्दन की प्रॉब्लम स्टार्ट कर लूँगा, जो आज हम एक्चुअली देख रहे हैं. अर्ली डिजेनरेटिव चेंजेस इन योर स्पाइन. Yes, that's what is And it's very common. Doctor, I just wanted to understand one thing. If you have to compare it from earlier times, like around 20-30 years ago, till the time this internet came into our lives, Right. what is the spine degeneration age in terms of when did it start early, and now how has it changed in today's time with the modern lifestyle? मैं एक रफ आइडिया दे सकता हूँ. 16 years back when I started my practice, and in just 16 years time, Yes. what commonly we are observing with the reports and the scan, जो changes हमें early 45 और 50 में दिखते थे, a few changes in your spine, जहाँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ हो रही है, थोड़ी सी आपकी डिस्क कंप्रेस हो रही है, स्पाइन का स्पेस थोड़ा सा कम हो रहा है इंटरवर्टिबल डिस्क का, थोड़ी सी नर्व कंप्रेशन की शुरुआत हो रही है जो आपकी 40s और 50s में होता था. एग्जैक्टली सेम पिक्चर आज हमको हमारे लेट 20s में दिख रहा है. 25, 27, 28. Unfortunately, we are actually seeing so much of serious health issues with the spine that young people below 30 are also going for surgery. Can you give an example of one of your patients in case of? The most tragic experience as a doctor was when I saw a patient who's 26-year-old young male. He's already been operated for his L3, L4 disc compression. The surgery was an arthroscopic repair. आपकी छोटी सी गद्दी जो डिस्क प्रोलैप्स हो गई थी, वो नर्व को कंप्रेस कर रही थी. एक्चुअली कंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका था नर्व में. तो एक मिनिमली इन्वेजिव डिस्क सर्जरी, छोटा सा कट दे के आपकी जो नर्व कंप्रेस हो रही है उसको रिलीज किया जाता है और आपका पेन सारा चला जाता है. इट वॉज वेरी सैडनिंग टू सी अ 26-year-old जस्ट गेटिंग ऑपरेटेड. दैट वॉज नॉट सो ट्रैजिक फॉर मी. हो सकता है स्पोर्ट्स में भी इंजरी होती है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में भी इंजरी हो सकती है. दिस गाय गॉट हिज इंजरी बिकॉज ऑफ सडन वेट लिफ्टिंग इन द जिम. इशू हुआ, सर्जरी भी हो गई, पर सर्जरी के बाद में दिस गाय वाज एक्चुअली बेंड. मगर इस सर्जरी के बाद में जो केयर है, आपको एक्सरसाइजेस करनी है, आपकी स्पाइन को वापस कंडीशन करना है, शायद वो प्रॉपर नहीं हो पाया. बट जब उनके पेरेंट्स मुझसे मिलने आए कि डॉक्टर अगर आप चाहते हैं वी कैन सीक सम अदर एडवाइस, वी कैन गो वेरेवर यू वांट, वी कैन सीक द बेस्ट मैनेजमेंट इफ यू एडवाइज अस, बिकॉज दिस गाय वी वर जस्ट लुकिंग फॉर अ गर्ल फॉर. और मुझे तब रियलाइज हुआ कि आपकी एक बैक पेन की इशू आपकी नहीं है, पूरी फैमिली की बन चुकी है. Absolutely. And it can present that way. Yeah. And it took him almost 2.5 years of his recovery time. That's why it's like it has become a headache of today. I feel India is a very progressive country and we have youth power. पर अगर youth power का spine काम नहीं करेगा तो the backbone is gone for. Yeah, it's like spineless, being spineless. हाँ जी, and if we take care of it, once your spine is strong, we are back.